Jai Shri Ram, Jai Shri Krishna, Jai Hanuman. So today we have reached the fourth verse of chapter 3, that is Karma Yoga. We completed the first three verses, and all these verses are a bit of an overlap also. Certain explanations which have already been given might be repeated here or there. So it is not totally exclusive of each other. One leads to another, and there is always an overlap. So let's just start. Om Shri Paramatmane Namaha Atha Tritiyodhyayah Karma Yogaha Shri Bhagavan Na karma, the fourth verse. Na karmana manarambhat nishkarmya purushoshrute na cha sanyasya na deva siddhim samadhigacchati. It's a very beautiful verse, and हमेशा देखिएगा जब when we are trying to explain things in our scriptures, they'll give you both the sides of the coin, right? कहीं ना कहीं in a way they are telling us कि एक set fixed answer नहीं है. Over here, beautifully they are explaining, first in English and then in Hindi and then English. मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना, right, before starting the कर्म, निष्कर्मता का अनुभव करता है, right, और ना कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धियों को ही प्राप्त होता है. ठीक है. And let's see what they say in English over here. They are saying, not by non-performance of action does man reach actionlessness, nor by mere renunciation does he attain perfection. Right? So, इसमें two things have been brought forward. कि we might think that if we don't act, if we don't do any work, right? And one thing we have already understood after listening to the explanation of the third verse, that karma is not only action, right? Mansa vacha karmana. Anything that we are thinking of is also karma, right? Anything that comes to our thought is also karma. So much so that the suksham breath is also action, right? So that is the premise of Gita. It is not only what we are working with our hands or doing outside, what we think of, and even when we are breathing and eating, that is karma, right? And second thing that we have to remember is that just by renunciation of action or just by renunciation of an object, it does not mean that we are free of karma. Even when we think of something that we have left, suppose we have stopped eating rasgulla and in our mind 24/7 वो रसगुल्ले का स्वाद घूम रहा है मुंह में और मस्तिष्क में, तो वो कर्म हो रहा है. वो रसगुल्ला हमारे से छूटा नहीं है, right? Yes, in the material world, yes, of course, we don't eat rasgulla. Even if we think about it, we are not going to gain weight, right? But कर्म हो रहा है, so it is a little different. So ये दो premises we have to keep in mind when we are talking about कर्म योग, right? So अभी ये क्या कह रहे हैं, ना ही कर्म ना करने से, ना ही कर्म त्यागने से. It is first verse is ना कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्य पुरुषोश्रुते. Over here is saying अगर आप कर्म नहीं करेंगे, especially when we are talking about कर्म योग, right? There are various yogs we have talked about. भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राज योग, हठ योग, बहुत सारे तरीके से योग is connecting to that divine, right? There are multiple ways of connecting. Right now we are talking about कर्म योग. So कर्म योग में अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे, तो when will we reach without action? Will that action become selfless? नहीं, right? So over here the entire premise is कर्म योग कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, राइट? क्यों? कारण कि निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्म योग की सिद्धि होती है. So whatever we are doing,
in this world has to be done without any expectation of any fruit or any result in return. For instance, एक और चीज कह सकते हैं, हमें कर्म में ममता और आसक्ति राइट नहीं होनी चाहिए. विदाउट एनी अटैचमेंट. व्हेन वी से ना कामना, ममता, आसक्ति, expectation, attachment should not be there when we are doing that action. Then only कर्म योग सिद्ध होता है. तो क्या कामना एंड ममता और आसक्ति रहित कर्म करना is the foundation of karma yoga. Many a times it's very complicated to understand a lot of things that is being said, right? So कोई बोलेगा कि द्वैत है, कोई बोलेगा अद्वैत है, कोई बोलेगा वशिष्ठ अद्वैत है, कोई बोलेगा नहीं सब कुछ एक स्वप्न है, राइट? नो प्रॉब्लम. हाउ डज इट मैटर? कम टू थिंक ऑफ इट, एक बार हम रुक के सोचें भी, चाहे जो कुछ भी है ना, हम एक बार मान लें कि सब कुछ ही प्रभु है, प्रभु के अलावा कुछ भी नहीं है, सब में प्रभु है, प्रभु सब में है. अद्वैत. द्वैत में हम मान लें कि प्रभु है, हम है, आत्मा है और परमात्मा है ना. या फिर हम मान लें विशिष्ट अद्वैत कि हम प्रभु का एक अंश है. डज इट चेंज एनीथिंग? या फिर इफ वी वांट टू, सम पीपल विल से नो इट्स जस्ट अ ड्रीम. देयर इज नो रीजन टू दिस मैडनेस. इट इज नाइस टू बिलीव दैट देयर इज नो रीजन टू दिस मैडनेस. जो हो रहा है हो रहा है, ठीक है. ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है. इसमें ना एक ब्यूटीफुल थिंग है, सनातन धर्म में कोई अगर बोले ना, चारवाक फिलॉसफी होती है जहाँ पे वो भगवान को नहीं मानते, वो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, वो प्रीवियस जन्म को नहीं मानते हैं, वो चारवाक होते हैं. ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, जो है वो अभी है, वो भी सनातनी है ना. इट इज़ देयर बिलीफ. क्या फ़र्क पड़ गया? सो देर आर सो मैनी वेज टू लुक एट द सिचुएशन. नाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? नो. What makes a difference is how I act in this world. Whatever is. So the way I act in this world determines everything else. And how should I act in this world? Irrespective of what is the truth, is selfless action and service free. The work should be selfless. निष्काम भाव से आप कर्म करिए, बिना ये सोचे कि अब मुझे इससे क्या मिलेगा, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, आगे जाके क्या अगर मैं उसके लिए काम करूँगा तो वो मेरे काम आएगा. नहीं. सेल्फलेस एक्शन. तो क्या बोल रहे हैं? कर्म योग में कर्म करना आवश्यक है, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू डू निष्काम कर्म, कर्मयोग सिद्ध नहीं होगा. एंड निष्काम कर्म करना कितना कठिन है, क्योंकि there is one more thing. We talked about 2 premises. The third premise is we have to get detached with our own body. Till we are thinking that this is my body, this is my thought, this is my mind, ये मेरे वचन है, जब तक हमने अपनी आत्मा को इस शरीर से जोड़ रखा है और हम ये मान रहे हैं कि हम एक हैं, तब तक निष्काम कर्म नहीं होगा. कहीं ना कहीं we have to realize that this body is different, this mind is different, this thought is different, the words that are coming out of this mouth is different. मैं एक आत्मा, एक दृष्टा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ. जब तक हम ये नहीं सिद्ध कर पाएंगे तब तक निष्काम कर्म नहीं होगा. So 3 objects we talked about, right? 3 types of things. So together they tell us कि हाँ, now you act in this world assuming that you are not this body, not this mind, not this thought. You are this Atman who is not involved in this prapanch at all. And on top of it, you are not doing any action with any expectation or attachment. Plus, it is selfless. Totally selfless. इसके लिए नहीं कि हाँ मैं मेरे बेटे के लिए कर रही हूँ, या मैं मेरे पुत्र मतलब रिलेशंस के लिए कर रही हूँ. नो. At that time, that boundary also has to dissolve. That link has to get dissolved. This kind of action, when is done, is karma yoga. So, na karmana manarambham naish karmya purushoshrute.
मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कामता का अनुभव कर सकता है. वेरी सिंपल, अंडरस्टूड, वेरी सिंपली पुट. सो जब हम कर्म नहीं करेंगे, नाउ मेनी टाइम्स इट इज अ बिलीफ दैट वी विल स्टॉप एक्टिंग. यस, कहीं ना कहीं later on when we are going to read on the verses, they say yes, don't indulge in unnecessary action, right? Unnecessarily don't take your senses outside. कई बार होते ना, ठीक है, we were just getting bored, so we went for a window shop around the mall. That is exposing your senses to so many different things. उससे then the senses come out and the attraction starts. So that is not the kind of action they are talking about. कि वो करना ही पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा, वो ज़रूरी नहीं है. So we have to be very mindful when they are saying कर्म तो करने पड़ेंगे. That does not mean कि you are walking around mindlessly without any any importance. कुछ उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप अपने आप को इंडल्ज मत करिए. पर जो कर्म करना है, फॉर इंस्टेंस राइट नाउ इफ अर्जुन फाइट्स द बैटल इज नॉट पर्सनल. नाउ कृष्ण भगवान टोल्ड हिम दैट तुम्हें ये मैं क्यों करने का बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी तक यू वर सेइंग आई एम फाइटिंग अगेंस्ट द कौरवास, राइट? पांडवा कौरवा, क्योंकि दे हैव बीन अनजस्ट टू अस, इनने हमें भूमि नहीं दी. नाउ चेंज योर पर्सपेक्टिव, चेंज द पर्सपेक्टिव. ये धर्म युद्ध है, राइट? तुम खुद के लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम किसी और के लिए नहीं लड़ रहे हो, खुद के स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो, राइट? अपने आप को हटाओ वहाँ से, तो स्वार्थ हट गया. द मिनट देयर इज नो स्वार्थ, यू आर फाइटिंग फॉर दैट ग्रेटर कॉज. क्या हो गया? कर्म आपका निष्कर्म हो गया. कोई उसमें आपकी आसक्ति नहीं रही, पर्सनल बेनिफिट नहीं रहा. It's very difficult. It's not very easy to work in that mode all the time, but we have to uplift ourselves to bring ourselves to that awareness again and again. Just give me 1 minute. So over here, the understanding is कि हमें कर्म त्याग नहीं करना है, but our attitude towards the work has to change. Then what is he? न च संन्यस्य न देव सिद्धिम समति गच्छति. What is saying? और ना कर्मों का त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होते हैं. वेरी ट्रू, राइट? टुडे इफ आई डिसाइड दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एट ऑल, राइट, हम बैठ जाएंगे, तो क्या सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे? इट इज़ अ क्वेश्चन दैट वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स. व्हेन वी से कि कर्म नहीं करने हैं, तो वी अंडरस्टूड कि कर्म तो होगा ही, राइट? वी अंडरस्टूड कि व्हाट काइंड ऑफ अ कर्म लीड्स टू निष्काम भाव से करा हुआ कर्म हमें बांधता नहीं है. इट डज नॉट बाइंड अस. नॉट जस्ट बाय लीविंग ऑल विजिबल एक्शन, क्या सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे हम? नहीं होंगे. इट इज नॉट पॉसिबल. अभी एज वी गो फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू रियलाइज दैट इवन व्हाइल समबडी इज सिटिंग एट अ डिस्टेंस, seemingly actionless, doing nothing, right? What is the thought, what is the objective, what is going on in his mind matters, right? Abhi there are people who go in isolation, right? So unki pravritti ke hisab se, depending on their nature, whether they are rajasic, tamasic or sattvic. Yes, a sattvic person who is sitting in a samadhi is going to think about God, he is going to chant. A rajasic person will not be able to stay put. Lots of thoughts are going to come to his mind. Lots of things are going to come to his mind while he's sitting there at that time, and it happens to all of us. While we are sitting, assuming that we are not doing anything, the mind is in action. वो कहाँ कहाँ जाके आ जाता है. And जो आलसी व्यक्ति है, जिसकी तामसिक प्रवृत्ति है, in the pose or in the guise of meditating, he might be just sleeping. तो क्या कर्मों के त्याग करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है? नहीं. सो द लॉर्ड इज क्लियरली टेलिंग अस कि कर्म ना करना इज नॉट एन ऑप्शन, एंड जस्ट संन्यास और समाधि में बैठना इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन, बिकॉज द टेक्सचर ऑफ योर माइंड और द थॉट और द ऑब्जेक्टिव मैटर्स, राइट? तो इसमें इनने एक और बात बोली है, कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की अपेक्षा साधक को
उनसे अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए. राइट नाउ दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट. अभी तक वी अंडरस्टूड इट. ही इज सेइंग कि ठीक है, डोंट लीव द एक्शन, वट एवर वी आर डूइंग हैज टू बी डन, बट संबंध विच्छेद करना, द टाई, द जॉइंट, वी आर जॉइंट हियर कि दिस इज द एक्शन, आई एम डूइंग इट फॉर दिस, आई एम डूइंग इट. एक संबंध हम अटैच कर लेते हैं जो भी हम कर्म कर रहे होते हैं उससे. राइट क्योंकि इसमें वेरी सिंपल है, कर्म करते हुए शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को सांसारिक वस्तु मानकर संसार की सेवा में लगाता है और कर्म तथा पदार्थों के साथ अपना कोई संबंध नहीं मानता. So while you are there, while the action is happening, there should be no doership. मैं करता नहीं हूँ, कर्म हो रहा है, things are happening. There is no link between me, this body and the action. हम क्या मान लेते हैं कि हम शरीर हैं और हम कर्म कर रहे हैं, हम दृष्टा हैं. ये शरीर से भी मेरा कोई संबंध नहीं है और जो कार्य हो रहा है उससे भी मेरा कोई संबंध नहीं है. एंड अगर हम थोड़ी देर बैठ के सोचें, एक्चुअली अगर हम सोचें आज तक जीवन में जो हुआ है, कितनी चीज़ों में हमारा कंट्रोल रहा है. आप सोचिए ना. अगर हमें लगता है ना कि इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, कर्म तो हम ही कर रहे हैं, नहीं, जो हो रहा है, जो आप बोल रहे हैं, जो चीज़ें घट रही हैं, जहाँ आप जा रहे हैं, many a times people exclaim and say that, oh my God, I never thought of it, I never dreamt of it, I never wanted to go there. हो क्या? तो फिर जब हमें पता है, अगर हम शांति से बैठ के सोचते हैं कि हमारा वैसे भी कोई योगदान नहीं है इन चीज़ों में, चीज़ें हो रही हैं, तो हम इट विल बिकम अ लिटिल ईजियर टू स्टेप बैक. एंड ये जो संबंध है, हमने जो अपने आप को शरीर मान रखा है और शरीर से कार्य हो रहा है, उस संबंध को तोड़ने में तकलीफ नहीं होगी. बिकॉज ऐसे भी अगर एक चेस बोर्ड है, आप मान लीजिए देयर इज़ अ चेस बोर्ड, एंड वो प्यादा मान ले कि मैं ही चाल चल रहा हूँ, तो प्यादा तो चाल चल ही नहीं रहा है ना, कोई और चला रहा है, वो चल रहा है. जैसे ही हम विजुअलाइज करने लगते हैं, व्हेन वी गो डीपर, व्हेन वी आर इन अवेयरनेस, व्हेन वी एक्चुअली सिट एंड थिंक, प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हम सोचना नहीं चाहते हैं, हम एकांत में सोचना ही नहीं चाहते हैं. वी डोंट इंट्रोस्पेक्ट एंड गो इन रेट्रोस्पेक्ट एंड सी थिंग्स कि ओ ऐसा सब हुआ, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, हमारा कोई योगदान नहीं था, हम एक प्यादे के चरे पहुंच गए बस. इससे बहुत अच्छी चीज़ एक हो जाती है कि ईगो नहीं आती है ना. ईगो भी नहीं आती कि हाँ हो रही है, चल रही है, चाल चल रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कोई हमें बढ़ाता जा रहा है. वेरी सिंपल. तो अगर इस भाव से कर्म किया जाए तो कर्म बंधन नहीं होगा. We would not be tied in the shackles of life and death also, because we'll be free. There will not be any connection between what is happening. We'll be distant. कहते हैं ना, कई बार कहते हैं कि काजल की कोठरी में कितना भी जतन करो, काजल का रंग लग ही जाता है, राइट? पर नहीं, ज़रूरी नहीं है. इवन दो वी आर इन दिस काजल है पूरा, काजल की कोठरी में हम हैं, शरीर पे रंग लग रहा है, हमारी आत्मा एकदम निर्लिप्त है. इट इज़ नॉट कंसर्न्ड, इट इज़ नॉट बीइंग टच्ड बाय द काजल, वो डिस्टेंट है. द ओनली थिंग इज हम ये अवेयरनेस छोड़ देते हैं. तो इसमें यही कर रहे हैं, सिंपली ही सेइंग, सो ही इज सेइंग act in this world, but your attitude towards action has to change. What you are doing does not have to stop. आप जो कर रहे हैं, पर अच्छा कर्म करिए, बुरा मत करिए, किसी को हार्म मत करिए, ये नहीं कह रहे हम. कर्म करिए, पर योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द एक्शन हैज़ टू चेंज. बस यहाँ पे हमें थोड़ा सा बदलाव लाना है, राइट? दिस इज व्हाट दिस वर्स इज सेइंग. अतः लेट्स जस्ट लुक एट दिस. अतः निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए. सो हाउ डू यू एक्ट? in a very summarized form. So the verse is saying, ना तो कर्म छोड़ने से, ना सब त्याग करने से होगा. क्या होगा?
कैसे कर्म करने से सब कुछ होगा? अतः निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत होगा। क्रिया का जो वेग है ना, it will calm down, right? We'll understand it even further. वेग शांत होकर प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा। When we indulge ourselves in selfless action, the velocity of action is going to reduce. वेग एकदम से कम हो जाएगा एंड प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा। एवरीथिंग दैट इज अराउंड अर, प्रपंच एंड प्रकृति, राइट? ये शरीर भी प्रकृति का ही हिस्सा है, उससे हम डिटैच हो जाएंगे। देर इज अ मूवी इन विच द सोल टेक्स, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द मूवी, बहुत पहले देखी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। द सोल यूज टू टेक द बॉडीज, very relevant to, because it was visually putting it. The soul would just enter a body and then it will live in that body, and then jab ho gaya, then the soul would enter another body. मतलब it was just showing it in this life, but ऐसा ही है ना। तो ये संबंध विच्छेद, we have to break the illusion that I am the body, I am the mind, I am the कर्ता and I am the भोक्ता। जैसे ही हम ये तोड़ देंगे, वो कैसे टूटेगा? सेल्फलेस एक्शन से। जब हम स्वयं के लिए काम करना छोड़ के सबके लिए काम करने लगेंगे, सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। एंड व्हाट संबंध विच्छेद हो जाएगा और सब देश काल आदि में विद्यमान परमात्मा तत्व प्रकट हो जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा। देखिए, एंड देन वंस वी स्टार्ट डूइंग सेल्फलेस एक्शन, in everything there is that Lord, right? The divinity is shining. वो प्रकट हो जाएगी। हमने देखा होगा ना, when we are singing भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, right? हम बार बार ये शब्द प्रकट सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी विद्यमान है। The Lord is there, God is there, that divinity is there in everything. The only thing is हमें नहीं दिख रही है, right? वो है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं है और हमें उसको ढूंढना है या लाना है। वो है, हमें नहीं दिख रही है। एंड देन जैसे ही हमारा हृदय शुद्ध होता है, द लाइट स्टार्ट शाइनिंग, वो प्रकट हो जाती है, राइट? एंड व्हेन इन एवरीथिंग वी स्टार्ट सीइंग द डिविनिटी, वेरी सिंपली द डिविजन इज ब्रोकन, राइट? दैट वननेस कम्स। एंड व्हेन देयर इज वननेस, सब कुछ एक है, सब में वही परमात्मा है, सब कुछ वो ही कर रहा है, सब कुछ वो ही भोग रहा है, तो एक ये जो मैं है ना, वो ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही मैं ख़त्म हो जाता है, आप जो भी कर्म कर रहे हैं आप कर ही नहीं रहे हैं फिर, राइट? संबंध विच्छेद हो गया या नहीं हुआ? तो सिंपली, ज़्यादा अगर हम डेप्थ में ना जाना चाहें और इतना सा समझना चाहें, सो दिस वर्स इज सेइंग प्लीज इंडल्ज इन सेल्फलेस एक्शन। कर्म तो करने पड़ेंगे, स्वार्थ छोड़िए, जनहित के लिए काम करिए, ग्रेटर गुड के लिए काम करिए, एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। सो दिस इज व्हाट वर्स नंबर 4 इज सेइंग। अब हम नेक्स्ट वाली वर्स पे जाएंगे, 5th वर्स। ना ही कश्चित क्षणमपि, बहुत सिंपल वर्स है ये भी। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणेः। Now what is it saying? Very simply, again emphasizing on one simple thing, because कई बार ना this notion of actionlessness in the physical sense हमारे अंदर घर बना लेता है। तो बोल रहे हैं, ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी, इवन फॉर अ सेकेंड और लेस देन दैट, कर्म किए बिना नहीं रह सकता, राइट? ये संभव ही नहीं। और ये बार बार हम बोल चुके हैं बहुत बार, ताकि हमें ये बात समझ आ जाए, कर्म तो होगा ही, राइट? और फिर नहीं रह सकता। क्यों? द नेक्स्ट वर्स इज, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेती है।
हम भी तो प्रकृति का हिस्सा है, इस प्रपंच का हिस्सा है। तो जो भी प्रकृति का हिस्सा है उसे प्रकृति कर्म करवा लेती है। आप क्षण मात्र भी बिना कर्म करे नहीं रह सकते। What is it saying over here? It is saying none can ever remain even for a moment without performing action. And we have already given a disclaimer. Action is not only the physical action, but the mental thought that we have also. For everyone is made to act helplessly, indeed, by the qualities born of nature, Prakriti. एंड ये इसमें अगर हम डेप्थ में नहीं भी जाना चाहें तो ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि बार बार हम समझा चुके हैं। एंड प्रभु इसी के लिए बता रहे हैं कि कर्म से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, कर्म से नहीं छूट सकते। कर्म तो पीछे 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 लगा ही रहेगा। तो क्या करें फिर? कर्म करना सीख लेते हैं ढंग से। जब कर्म से छुटकारा नहीं है, राइट, अगर हम ऊपर जाके, जब हमने समझ लिया कि हम साधु बाबा भी बन जाएं, हिमालय की किसी चोटी पे जाके एकांत में भी बैठ जाएं, सात्विक राजसिक तामसिक जो भी हमारी प्रवृत्ति है उस हिसाब से हमारे मन में कर्म चलता रहेगा, राइट। तो जब कर्म से कोई मुक्ति नहीं है तो क्या करना चाहिए? कर्म कैसे करना चाहिए वो सीख लेना चाहिए। सो बार बार जो बोल रहे ना, एक क्षण भी, और अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर नहीं लड़ोगे और सब छोड़ के, कि तुम्हें 5 गांव भी नीचे छोड़ के तुम चले जाओगे, तो क्या तुम कर्म से बच जाओगे? नहीं बचोगे। एंड इसी के लिए आपने देखा होगा सनातन धर्म में 4 आश्रम है, और चारों आश्रम में के बाद हमें आगे बढ़ना पड़ता है। ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम से हम जाते हैं वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से हम संन्यास आश्रम की तरफ जाते हैं। पूरा एक लिंक हमें सेट करना पड़ता है। बहुत कम, ठीक है, बहुत कम ऐसे होते होंगे जो सीधा संन्यास की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं, पर सनातन धर्म की प्रथा नहीं है, क्योंकि कुछ छोड़ने से भी कुछ नहीं है, कुछ पकड़ने से भी कुछ नहीं है। क्या छोड़ोगे और क्या पकड़ोगे? किसको छोड़ोगे और किसको पकड़ोगे? अधिकतम हम देखते हैं कि एक छोटा सा परिवार छोड़ के एक बड़ा सारा परिवार पकड़ लिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि 4 दीवारी 4 कमरे छोड़ के एक बड़ा सारा आश्रम हो जाता है। होता तो वही प्रपंच ही है ना। क्या छूटा? थोड़ा सा छोड़ने के चक्कर में आपने बहुत कुछ पकड़ लिया, है ना। तो वो हमारा उद्देश्य ही नहीं है। एंड ही इज टेलिंग अस, जब क्षण मात्र भी, इवन फॉर अ मोमेंट, यू कैन नॉट बी इनर्ट और एक्शनलेस, देन व्हाट शुड यू डू? अगेन ही इज एम्फसाइजिंग, क्योंकि प्रकृति तो कर्म करवाएगी, कर्म करना सीख लीजिए। सेल्फलेस एक्शन, आप में जितनी भी क्षमता है जनहित के लिए लगा दीजिए, दूसरों के हित के लिए लगा दीजिए। अगेन वापस रेपिटिशन, the texture of the mind has to change. Me and mine, you and yours has to be removed. And the bigger picture, कहते हैं ना, expand your heart. मन को expand करिए, अपने दिल को बढ़ाइए। जैसे कि हाँ, एक बार just sit down, sometimes just sit down and assume that your heart is expanding. इस कमरे से बाहर पहुँचे मेरा दिल, you know, पूरा कमरा मेरा है, फिर 2 कमरे, 4 कमरे, घर। नाउ द एक्सपेंशन कंटिन्यूज, वेयर द एंटायर बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ माई एग्जिस्टेंस, राइट, एवरीबडी लिविंग इन इट। देन गो फर्दर, expand it to that area, expand it to the city, expand it to the country. Gradually see yourself, visualize your heart expanding beyond the boundaries of a nation also. सब कुछ, all the borders are being broken, everything is coming in. धीरे 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 पूरी दुनिया ही मेरी है, पर वहीं पे क्यों रुकना है? You go on even further, where the entire universe, entire creation, entire existence is but a part of you. यह अभ्यास करना पड़ेगा धीरे 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 धीरे। जब यह अभ्यास होगा, कर्म अपने आप शुद्ध हो जाएगा। And then, when you act in this world, it is not going to be selfish, it is going to be selfless. यहाँ पे कहते हैं ना,
राम सुखदास जी ब्यूटिफुली पुट्स, ऐसा नहीं मान, व्हाट इज ही सेइंग, ऐसा नहीं मानता, व्हाट इज ही सेइंग, कि तथापि जब तक वह शरीर के साथ अपना संबंध मानता है तब तक वह एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जब तक हम शरीर के साथ अपना संबंध मानते हैं तब तक हम एक क्षण के लिए भी बिना कर्म करे नहीं रह सकते। एंड वेदर वी, कितना ही हम ज्ञान ले लें, नो मैटर हाउ मच ऑफ बुकिश नॉलेज वी गेट, ये अंदर से जो एहसास है बहुत मुश्किल से आएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इससे परे हूँ। तो जब तक ये संबंध है तब तक कर्म तो हो ही रहा है ना। आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई थिंक इट वॉज इन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। उसमें आई डोंट रिमेंबर द नेम्स ऑफ द गुरुज, बट इट जस्ट सो हैपेंड दैट दैट वन गुरु सडनली सैट डाउन एंड कुछ होगा, उनका प्रण होगा, and because the food was not available, he started partaking non-veg. And then his shishya went and said कि अरे आप तो ये खा रहे हैं। बोला अच्छा, ओके। सी, हम लोग ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारा शरीर के साथ संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। हम कितना ही कह लें आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस थॉट, ये नहीं है वो नहीं है, नहीं, अभी तक हमारे अंदर वो बात नहीं गई है, राइट। इट इज़ नॉट बीन इंटरनलाइज्ड एंड पुट इनटू एक्शन। बट उनके लिए हो गया था, उनके लिए शरीर उनका नहीं था, जो वो कर रहे थे वो कुछ नहीं था। ही हैड डिटैच्ड हिमसेल्फ टोटली, ही वाज नॉट। ऐसे जीवन मुक्त बहुत कम होते हैं। तो अगर हम, एंड वी शुड नॉट लाई टू आवर सेल्स ऑल्सो, हमें पता है कि हम कितने पानी में हैं। तो अगर वैसी स्थिति है तो फिर क्यों कुछ और करने के लिए हम भागे। बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं को, जो हमने अभी बोला था, कर्म मानते हैं, राइट। व्हेन वी आर सेइंग क्षण मात्र भी, ना ही कश्चित क्षणमपि, even for a second you cannot remain without कर्म। The disclaimer we gave before is coming again। बहुत से मनुष्य स्थूल शरीर की क्रियाओं को ही कर्म मानते हैं। This physical body's action is only considered as कर्म, बट पर गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है, राइट। ये हमें बार बार व्हेन वी आर रीडिंग कर्मयोग हमें जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। सो इट इज सेइंग कि मन की क्रियाएं भी कर्म है। गीता ने शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से की गई मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। तो ऑल दीज थ्री, कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, ऑल दीज थ्री क्रियाज से हम मुक्ति नहीं पा सकते, नॉट इवन फॉर अ सेकेंड। हम सो भी रहे तो भी वो एक कर्म है। कहते हैं ना, कोई हम सो रहे होते हैं और अचानक से हमें कोई समय से पहले उठा देता है, देन वी से ओ माय गॉड, मेरे को कच्ची नींद में उठा दिया, वो भी एक कर्म है। आपको पता है कि आप सो रहे हैं, राइट। सो जब तक शरीर में अहमता ममता है तब तक शरीर से होने वाली मात्र क्रियाएं कर्म है। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम दूसरों पे भी नहीं जा रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेरे बच्चे से ममता है, या मेरे घर में ममता है, या फिर मेरी चीजों से मुझे आसक्ति है। वी आर गोइंग बैक टू द बॉडी। जब तक शरीर में अहमता ममता है, ये शरीर जिसको हम मैं मानते हैं, जब तक इसमें अहमता ममता है तब तक सब कुछ एक कर्म है। बहुत मुश्किल है। चलिए एक बार हम मान भी लें कि दूसरों से अहमता ममता छोड़ दें, वैसे तो दूसरा कोई है नहीं, अब शरीर से अहमता ममता कैसे छूटे? कोई बात नहीं, नहीं छूट रही, उसका भी तोड़ बताया ना कि कैसे कर्म करना है। अतः शरीर में अहमता ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वह अवस्था प्रवृत्ति की हो या निवृत्ति की हो। We will go into the depth of pravritti and nivritti, or I'll send the write-up later. But no matter what avastha it is, whether you are in sansar, doing the work in the sansar, acting as you are, or nivritti, if you have taken and gone away and you are doing some
समथिंग वेरी डिफरेंट इन स्पिरिचुअल, जब तक शरीर में अहमता ममता है तब तक आपसे कर्म हो रहा है, कर्म से आपको क्षण भर भी मुक्ति नहीं मिल सकती, नो मैटर व्हाट। एंड व्हाट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट राम सुखदास जी बोलते हैं, स्वभाव बनता है एंड वृत्तियों से। स्वभाव कैसे बनता है? आर नेचर, इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल लिंक, वी कैन मेक अ नोट ओवर हियर। स्वभाव बनता है वृत्तियों से, वृत्तियां बनती हैं गुणों से, और गुण पैदा होते हैं प्रकृति से, राइट? सो नेचर, इट कम्स फ्रॉम आर वृत्तिस, वृत्तिस कम्स फ्रॉम, what does it come from? Our gun, all the characteristics. And where does it come from? प्रकृति से। अतः चाहे स्वभाव के परवश कहो, चाहे गुणों के परवश कहो, और चाहे प्रकृति के परवश कहो, एक ही बात है, राइट? आप जो भी कर्म कर रहे हैं, बोले अरे प्रकृति के कारण कर्म हो रहा है, या मेरे गुणों के कारण मेरे से ऐसा कर्म हो रहा है, या मेरी वृत्तियों के कारण हो रहा है, या मेरे स्वभाव के कारण हो रहा है, एक ही बात है। वन लीड्स टू अनदर, कर्म तो हो रहा है ना। द बॉटम लाइन इज कर्म तो हो रहा है ना। तो क्षण मात्र भी यू कैन नॉट बी फ्रीड फ्रॉम कर्म। सो एंड अगेन ही सेज, परंतु जब ये गुणों से अतीत अपने स्वरूप का अथवा परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है। Now this is for a person who has reached that Brahma Gyan, where he has realized Tattvamasi Aham Brahmasmi, मैं वो हूँ, वो मैं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। जब ये अनुभव हो जाता है, राइट? परंतु जब ये गुणों से अतीत अपने स्वरूप का, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, when we realize कि मैं एक सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, उसका जब अनुभव हो जाता है, तो फिर इसकी यह परवशता नहीं रहती, राइट? और यह स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। When you realize that you are that Satchit Anand Swarup, when you are established in your Satchit Anand Swarup, I'd rather say, then all these things do not apply to you anymore. तब फिर हम ये नहीं कहेंगे कि क्षण मात्र भी कर्म से मुक्ति नहीं है, पर तब जब तक उस स्टेट में नहीं पहुंचते कि मैं मेरे सच्चिद आनंद स्वरूप में स्थित हो गई हूं, तब तक क्षण मात्र भी क्या है? न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक सेकेंड भी कर्म से मुक्ति नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह के कर्म होते हैं, राइट? सो अगेन दे आर सेइंग, सो व्हाई इज ही अगेन एंड अगेन रिपीटिंग इट? बिकॉज अर्जुन इज विलिंग टू गिव अवे एक्शन, राइट? हमें लगता है कि हम एक्शन का त्याग कर दें तो खत्म हो जाएगी बात। बोल रहे कि एक्शन का त्याग करोगे तो भी कर्म से तो मुक्ति है नहीं, तो फिर अच्छे कर्म ही कर लो, राइट? जब मुक्ति ही नहीं है तो अच्छे कर्म कर लो। जब तुम सच्चिद आनंद स्वरूप और उस आत्म उसमें स्थित हो जाओगे, तब की तब देखेंगे। अभी तो हो नहीं अर्जुन, हम भी नहीं है, राइट? तो ये कहते हुए, एंड देन वेरी ब्यूटिफुली ही हैज पुट, ये जो प्रकृति की 2 थी, एक तो स्थूल होता है और एक सूक्ष्म होता है। स्थूल इज वॉट एवर फिजिकल दैट वी सी, राइट? whatever physical action that we can see, and that also we have already explained, that is known as stool action. स्थूल जो दिख रहा है हमें, जिसको हम छू सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और एक होता है सूक्ष्म, राइट? सूक्ष्म एक्शन होता है जिसको हम देख नहीं सकते, टैंजिबल इनटैंजिबल, पर वो हो रहा है। सो गो टू द डेप्थ ऑफ इट। कर्म अभी तक काफी लोगों से जब हम बात करते हैं, हम तो कर्म योगी हैं, वेरी गुड, पर कर्म तो समझिए कि कर्म किस सूक्ष्म लेवल तक कर्म ऑपरेट करता है, स्थूल लेवल तक ही नहीं ऑपरेट करता है। तो ये हमें राम सुखदास जी बहुत डिटेल में समझा रहे हैं। एंड देन ही सेज, अगर साधक ऐसा वास्तविक अनुभव कर ले कि संपूर्ण क्रियाएं पदार्थों में ही हो रही है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, संपूर्ण क्रियाएं पदार्थों में ही हो रही है, ऑल द एक्शन इज हैपनिंग इन दैट ऑब्जेक्ट, पदार्थ में ही हो रही है, और पदार्थों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, तो वह
पर्व शांत क्या है ये, पर्व सत्ता से मुक्त हो सकता है ना। इस पदार्थ में कौन और आ जाता है, ये शरीर भी। हमारी आदत है पदार्थ को ऐसे देखने की बाहर, राइट, ये पदार्थ है, वो पदार्थ है, वो पदार्थ है, पर हमारा ये जो शरीर भी वो भी एक पदार्थ ही है। तो टिल वी आर ऑपरेटिंग इन दैट लेवल कि whatever action is happening in that object only, this body is also that object, right? जब तक हम इस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, हम वी आर कनेक्टेड एंड कर्म होगा। तो अगर अर्जुन आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, कृष्ण बता रहे हैं उनको कि भाई तो फिर कर्म होना ही है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उस प्रकार से कर लो ना कर्म, राइट? बिकॉज कैन यू से कि हाँ दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना, कभी भी एक एक्टिविटी इफ वी डू एंड वी से कि ओके व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, आई हार्डली एनीबडी इज गोइंग टू पुट दिस बॉडी एज एन ऑब्जेक्ट, कि ये जो शरीर है ना जो बैठा हुआ है वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है। इस कमरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट ही तो बैठा हुआ है। जैसे ये लैपटॉप है वैसे ये शरीर है, और क्या फ़र्क है क्या कोई फ़र्क? आत्मा हटा लीजिए, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। 3 घंटे भी घर वाले घर के अंदर नहीं रखते उसको। क्या अहमता ममता, फिर सोचिए आप, क्या अहमता ममता, किस चीज़ से अहमता ममता? एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टुवर्ड्स द एंड, राम सुखदास जी बोलते हैं कर्म करने में तो हम परतंत्र हैं, राइट? सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि वी डू नॉट हैव फ्रीडम फ्रॉम एक्शन एज ऑफ नाउ। वो भी हमने बताया कि कब फ्रीडम फ्रॉम एक्शन हम बोल सकते हैं, है ना, पर एज ऑफ नाउ एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ आई वुड से कर्म करने में तो हम परतंत्र हैं, राइट? वी आर कैप्टिव, कर्म तो करना पड़ेगा, पर उनमें राग द्वेष करने में, अनदर पॉइंट दैट ही इज ब्रिंगिंग अप वेरी ब्यूटिफुली, राग द्वेष करने में अथवा ना करने में हम स्वतंत्र हैं। कैसे? You know, actually bifurcating an object, an action into good or bad, I like it or I dislike it, राग और द्वेष, ये जो 2 ऑपोजिट्स हैं, हम कर्म कर रहे हैं, कर्म हो रहा है, ये सिचुएशन है, उसमें राग एंड द्वेष की उत्पत्ति होना नहीं चाहिए। कांट वी जस्ट मेंटेन कि देयर इज नो अटैचमेंट टू अ पर्टिकुलर एक्शन एंड देयर इज नो हेट्रेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एक्शन। मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, राग द्वेष। तो टुडे जस्ट बाय लुकिंग एट दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनने तो बहुत कुछ बोला है, ऐसा नहीं लगता कि इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन वी थिंक। बट while they are bringing in the complications, they are telling this, in spite of all this, while you are acting, the freedom in liking or disliking, compartmentalizing an action is yours. कहते हैं ना, the choice is ours. कहीं पे भी शायद many a times people say, तो फिर तो हमारे कोई फ्री विल है ही नहीं, नहीं भी हो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, पर शायद है किसी चीज़ में राग करने में, किसी एक्शन में द्वेष करने में, किसी चीज़ को कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कहने में और मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता कहने में, शायद इतनी स्वतंत्रता है कि हम ये कर सकते हैं। आज शांताराम का एक पैराग्राफ, आई विल रीड इट लेटर व्हेन दिस इज रेलेवेंट टू इट, आई विल रीड इट नेक्स्ट टाइम, आई विल ब्रिंग इट विथ मी, वेर ही सेड द फ्रीडम of hating and liking somebody in a particular situation is all the freedom you need. And abhi what Karma Yoga is doing is, abhi tak jab hum karte the, we used to talk about other people, their actions. Abhi now everything that has been talked about, वहाँ पे किसी और की बात नहीं हो रही है, आप समझिए, ये हमारे एक्शंस, हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हमारे को कोई चीज़ हम जो कर रहे हैं इसमें राग है, हम जो कर रहे हैं इसमें द्वेष है, हम बस द ओनली पर्सन राइट नाउ इज अस, द ओनली ऑब्जेक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज हियर, राइट? सो दैट इज़ वेरी एसेंशियल। सो इसमें इनने हमें फ्रीडम दी है कि राग द्वेष करने में अथवा ना करने में हम स्वतंत्र हैं, राइट? कर्म करने में तो हमें करना ही पड़ेगा, वी आर बाउंड टू एक्शन,
अनफॉर्चुनेटली। तो ये कह के वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट बिट, एंड दिस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड ही सेज कर्म द सिक्स्थ वन, कर्म इंद्रियाणि संयम्य आसते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थ निविद मूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। आत्मा, हाँ, तो व्हाट इज ही सेइंग इज, जो कर्म इंद्रियों को, राइट, संपूर्ण इंद्रियां को हठ पूर्वक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रोक कर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता हुआ बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी कहलाता है। What is he saying in English? Let's see. Over here he is saying, he who restrains the organs of action, sits thinking in his mind of the sense object, he of deluded understanding is called a hypocrite. कई बार लोकाचार के कारण, राइट, many a times there is a picture of ourselves that we have to portray to the world. उसके कारण बाय फोर्स हम अपनी काफ़ी इच्छाएं सप्रेस कर देते हैं, राइट। काफ़ी चीज़ें हम नहीं करते, पर बाहर से स्थूल रूप से हम उसको नहीं कर रहे, राइट, बिकॉज वी नो कि नो, दिस इज़ नॉट socially acceptable, what will people think about me, what about my image, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं जिसके कारण we restrain ourselves from acting in a particular manner. However, हमारे मन में क्या चल रहा है वो कौन देख रहा है, राइट? मन में तो सब कुछ चल रहा है। मन में तो हमने सोच रखा है कि यार ठीक है, काश हम भी वहाँ जाते। नहीं 10 साल हो गए हम तो मूवीज़ नहीं गए हैं, पर मन में तो ओ माय गॉड मूवी हॉल ही घूमता जा रहा है आपके, राइट। आप लोकाचार के कारण नहीं कर रहे हैं, एक इमेज के कारण नहीं कर रहे हैं, पर अंदर तो वही चिंतन चल रहा है आपके। द थॉट इज़ द सेम, you keep on thinking about this, going here, going there, doing this, doing that, buying here, buying this. Who are we fooling? Why behave like a hypocrite? See, किससे छुपाना, किसको दिखाना? कहता मेरा सच तो मैं भी जानती हूँ, प्रभु भी जानता है, राइट। तो क्लियरली वो बोल रहे हैं कि जो इंसान हठ पूर्वक अपने आप को एक साँचे में ढाल लेता है, पर मन में वही चिंतन कर रहा होता है, वो मिथ्याचारी है, हिपोक्रेट है। अब अर्जुन की प्रवृत्ति है क्षत्रियों वाली, राइट, बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर, कई बार कहते हैं ना, दैट्स वाई नेवर मेक अ इम्पल्सिव डिसीजन, नेवर कमिट व्हेन यू आर वेरी हैप्पी एंड नेवर रिब्यूक और गिव अप व्हेन यू आर वेरी सैड। क्योंकि आपने मोमेंट में, उस मोमेंट के वेग में, in that spur of the moment you have done something, you have committed something, you have said something, but that is not what you are. Because in the previous verses, they have explained how minutely everything works, right? हम अभी तक कर्मयोग को बहुत सुपरफिशियल समझते थे। अब मतलब मेरे को तो ये समझ आया कि कर्मयोग जितना सुपरफिशियल है नहीं और इतना आसान भी नहीं है जैसे लोग कहते हैं करना। So when my pravritti, my mind has not accepted it, why am I behaving in a different manner? कहते हैं ना कि जो मन, वचन और कर्म से एक नहीं होता वो मिथ्याचारी है, राइट। मन, वचन और कर्म, आपके कर्म और आपके वचन and what is happening in your mind should be totally aligned. That is the prerequisite of any spiritual journey. If there is temptation in your heart, let it be shown outside. ना क्या फर्क पड़ता है? Yes, है, ऐसी भावना है, we are working towards it, कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रही, कर रहे हैं, right? So, and over here one more point is, we'll read what Ram Sukdas ji is saying before we close the class, but बार what they are saying is, don't try to suppress. Suppression is not the solution. क्योंकि आप बाहर से अपने आप को suppress कर लोगे, यहाँ का क्या, जो आपकी सोच है उनका क्या, राइट? तो सप्रेशन इज नेवर द सोल्यूशन, सप्लीमेशन इज।
इंडल्ज इन गुड एक्शन, इंडल्ज इन सेल्फलेस एक्शन, इंडल्ज इन प्रभु भक्ति. हाँ, मन नहीं है तो भी हाँ, आज हम बैठ के हनुमान चालीसा 3 बार पढ़ेंगे. धीरे 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 मन शुद्ध होता जाएगा. करो धीरे 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 धीरे, इंस्टेड ऑफ जस्ट कटिंग ऑफ एंड पोर्ट्रेइंग समथिंग एंड सफरिंग इन द हार्ट. सो ये कहते हैं ना, इसके उत्तर में राम सुखदास जी बता रहे हैं, अर्जुन भी कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं, राइट. और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं. इसके उत्तर में ये भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अहमता, ममता, आसक्ति, दीज वर्ड्स, अहमता, ममता, आसक्ति, कामना आदि रखते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रिया रहित मानते हैं, उसका आचरण मिथ्या है. वेरी सिंपल. व्हाट? कि हमारे मन में ममता क्या है? अहमता, मैं, अहमता, ममता, ममता इज अटैचमेंट इन अ वे. आसक्ति इज ऑल्सो लाइक when you are being pulled towards something. कामना, desires, we have all this. आदि रखते हुए, all these are there in अहमता, ममता, आसक्ति, कामना, सब हमारे मन में है. पर what we are doing is, but from the outside, बाहर से हमने हमारे कर्मों का त्याग कर दिया, राइट. तो फिर क्या हुए हम? अभी तो ये मिथ्याचारी बोल रहे हैं, वी आर ढोंगीज ना, हिपोक्रिट्स, total hypocrites, and that is not something that God wants, because hypocrisy say by being a dhongi, by being a mithyachari, we can fool the world, but we cannot fool God, we cannot fool ourselves. Our connection is not with anybody else, right? प्रभु और हम है बस. हमें और किसी को ना जस्टिफिकेशन देना है, ना किसी के सामने कुछ पोर्ट्रे करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली. पर प्रभु से तो झूठ ना बोले, खुद से तो झूठ ना बोले. हम तो खुद से झूठ बोलते हैं. कई बार ऐसा हो जाता है कि सच क्या है हम खुद नहीं जानते, इतना हम अपने आप को उलझा लेते हैं. तात्पर्य यह है कि साधक को, गीता में हमेशा हम गीता को बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं, पर अर्जुन को जब कृष्ण ने गीता सुनाई, कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को गीता सुनाई, तो उनमें एक तीव्र इच्छा थी किस चीज़ की? अपने उत्थान की, कि मैं आगे बढ़ूं, मैं स्पिरिचुअली इवॉल्व हूं, राइट. वो एक साधक स्वरूप में कृष्ण के पास आए थे, ना कि एक दोस्त स्वरूप में. अर्जुन और कृष्ण तो भाई थे और दोस्त थे, पर जब वो बैठे हाथ जोड़ के, तब उस समय वो भगवान थे और ये साधक थे. तो जो गीता बोली गई है वो साधकों के लिए बोली गई है, हु हैव दिस ग्रेट डिजायर टू इवॉल्व स्पिरिचुअली. सो व्हाट डू दे से? तात्पर्य यह है कि साधकों को कर्मों का स्वरूप से त्याग ना करके, राइट, स्वरूप से त्याग, दैट इज नॉट द फर्स्ट पॉइंट. स्वरूप से त्याग ना करके उन्हें कामना आसक्ति रहित होकर तत्परता पूर्वक करते रहना चाहिए. नो एक्शन हैज टू बी डिनाउंस्ड assuming that we are all doing, we are not harming anybody. It can be taken in a very negative way. हाँ तो फिर तो जो कर रहे हैं हम, नहीं नहीं ऐसा नहीं है. प्रेमाइसिस कि आप अपना स्पिरिचुअल उद्धान चाहते हैं, आप साधक हैं तो किसी का अनित तो नहीं करेंगे ना, तो उसको मत ट्विस्ट करिए कि हाँ फिर तो जो कर रहे हैं करते रहे. गीता तो ये नहीं, ऐसा गीता नहीं बोल रही है. तो आप जो भी कर रहे हैं उसमें बस आपको क्या चेंज लाना है? एक्शन में चेंज नहीं लाना है. आज आप खाना बना रहे हैं, बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, घर का ध्यान रख रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जाइए ना. अगर ठाकुर जी ने आपको एबिलिटी दी है कमाने की, कमाइए, पर आप कैसे कमाते हो उसका यूटिलाइजेशन क्या करते हैं? जनहित में लगाइए ना. किसने मना करा है? अगर आप में क्षमता है तो बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड. यस्टरडे आई वाज सिटिंग इन दिस सत्संग एंड उसमें बोला ना, किसने रोका है? आज अगर दुनिया में आपको कुछ बदलाव लाना है तो यू नीड टू बी पावरफुल, तभी तो आप कुछ बदलाव ला सकते हैं. बस नहीं, हमारे में बहुत क्षमता है, ठाकुर जी ने बहुत बुद्धि दी है, पर नहीं, पर हमने कर्मों का त्याग कर दिया. कर्मों का तो त्याग आप नहीं कर सकते. समझ आ गया ये? तो ऐसा कर्म करें जैसे जनहित हो, स्वार्थ रहित कर्म करें. किसने रोका है? जाइए ना, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, बट यूज फॉर योर पावर फॉर ग्रेटर गुड.
हु इज स्टॉपिंग यू? किसने कहा कि साधु ऑफिस नहीं जा सकता या साधु दुनिया में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता? आजकल तो हम आगे ही आगे देख रहे हैं. आपको पता है हमारी राज्यसभा में in our olden days, if you look at any scripture, open it, आप गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, आप देखेंगे कि सभा में इन द काउंसिल गुरु वशिष्ठ वगैरह सब बैठे रहते थे. ऐसी कोई सभा थी जिसमें साधु नहीं रहते थे? ऐसी कोई सभा थी जिनमें साधुओं की राय नहीं ली जाती थी? क्या चाणक्य साधु नहीं थे? चाणक्य नीति अभी भी हम पढ़ते हैं. तो किसने बोला कि देयर इज यू हैव टू लीव एवरीथिंग, डिनाउंस एवरीथिंग एंड रन अवे? नो. नाउ दे आर टीचिंग अस. देखो कर्म योग क्या होता है, हम आपको समझाते हैं. सो ओवर हियर दे आर सेइंग कि त्याग कर्मों का नहीं करना है. त्याग किस चीज का करना है? अहमता और ममता इन दैट एक्शन, राइट? स्वरूप से एक्शन नहीं छोड़ना है. We do not have to reach a state of actionlessness. They have given us a disclaimer, it is not possible. Right? So, तात्पर्य ये है कि साधक को कामनाओं का स्वरूप से त्याग ना करके उन्हें कामना आसक्ति से रहित होकर, without any desire, without any attachment, we have to work in this world to the best of our ability. And before we close, I'll just try to read this entire paragraph because it is very beautiful. It says, संसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है, right? संसारिक भोग है ना, रसगुल्ला हम बैठ के भी खा सकते हैं और रसगुल्ले को हम मन में भी खा सकते हैं. Very simple. I love food, so the example of food comes forward. सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी, है ना? बाहर से भोगना और मन से उनके चिंतन का रस सुख लेना, दोनों कोई फर्क नहीं है. Enjoying everything physically and enjoying everything mentally, there is no difference when we are talking about karma yoga in Gita. Right? Enjoying a roller coaster ride physically by going to the theme park or sitting here and just visualizing it is the same thing. And आपने देखा होगा कई बार कहते हैं ना, when we are talking to the gurus and all, बोला आपके पास में पुष्प नहीं है, मानसिक पुष्प अर्पण कर दो. आपके पास में जल नहीं है, मन से जल अर्पण कर दो. See, and this is the beauty of it. There is no difference. Everything is, whether we can see it, we can not see it, we can visualize it in our mind, it is. कहते हैं ना, आप जल मन से अर्पण कर दो, मन से पायल पहना दो माँ लक्ष्मी को, मन से उनके सर पे मुकुट रख दो, वो एक्सेप्ट हो जाएगा. There is no difference. There is no difference. And that is something which is very beautiful, very minute, and something that we need to be aware about. Alert. बाहर से राग पूर्वक भोग भोगने से जैसा संस्कार पड़ता है, बाहर से राग पूर्वक, right, with a lot of attachment, I am enjoying something, जो संस्कार पड़ते हैं, like imprints जो हमारे पड़ते हैं, वैसा ही संस्कार मन से भोग भोगने से, अर्थात मन से भोगों के चिंतन में रस लेने से पड़ता है. कोई फर्क नहीं है. बाहर से और अंदर से, it is the same thing that is going in. Whether I am enjoying doing something outside or I have refrained from it, but in my mind I am having that same enjoyment in my mind, the imprints are being made. कोई फर्क नहीं पड़ता, right? And भोगों की याद आने पर उनकी याद से रस लेते हैं तो कई वर्ष बीतने पर भी वह भोग ज्यों के त्यों रहते हैं. Isn't it? When we have enjoyed something and then we go back after 10, 15, 20 years and suddenly we think about something, the taste remains in our mouth. We can say, I can still see it or I can still taste it. It was so good. वो कहीं नहीं जाता. अतः भोग के चिंतन से भी एक नया भोग बनता है. And this is something we need to underline. It is saying कि भोग के चिंतन से, एक तो करने से we are bound, but by even thinking about it, one more desire is created.
By doing, the desire is created. By thinking about it and not doing it also, a desire is created. An imprint is created. It is so सूक्ष्म. इतना ही नहीं, मन से भोगों के चिंतन का सुख लेने से विशेष हानि होती है. मन से भोगों का सुख लेने से और उनके चिंतन करने से विशेष हानि होती है. कारण, why I'm not doing anything, right? I'm just thinking about it. What kind of a हानि, what kind of a loss, what kind of a thing are you talking about? तो राम सुखदास जी बोलते हैं, ठहरो जरा, मैं बताता हूं. कारण की लोक लिहाज से, लोक लिहाज इज, what will people say, what will people think. कारण की लोक लिहाज से व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से मनुष्य बाहर से तो भोगों का त्याग कर सकता है, पर मन से भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती. And this is such an important point. When we are relishing things in our mind, there is nobody who knows and there is no reason to stop. But when we are doing something outside, we will be okay. What will people say? What will they think? And kahin na kahin, because of people, we might stop doing it. But because it is happening in our mind, there is no reason to stop. सो एक्शन में हम जो कुछ गलत कर रहे हैं या जो कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं वो तो शायद फिर भी रुक जाए. जो हमारे मन में चल रहा है, मस्तिष्क में चल रहा है, विच इज हैपनिंग इन आवर थॉट्स, देयर इज नो रीजन टू स्टॉप, बिकॉज कोई नहीं है ना, लोकली आज नहीं है, नथिंग इज देयर, नोबडी टू स्टॉप, नोबडी टू जज अस. देन इट कंटिन्यूज. अतः मन से भोगने का विशेष अवसर मिलता है. दैट्स वाई वी कैन कीप enjoying whatever we want to enjoy in our mind without any judgment being passed, so there is no reason to stop doing it, right? क्योंकि कई बार हम लोक लिहाज के कारण भी रुक जाते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लगता. इसीलिए मन से भोगना साधक के लिए बहुत नुकसान करने वाली बात है. वास्तव में मन से भोगों का त्याग ही वास्तविक त्याग है. So for a seeker, that mental enjoyment without physically indulging is more detrimental. So if you really want to get free from action, it is not what is happening and what is being done outside. It is our disposition towards the action which has to change, and no mental enjoyment repeatedly should be there. जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान. ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.